I think firstly for me it was this script is very fresh. जो आप ट्रेलर में भी देख रहे हैं, this is something you haven't. There are lots of youth films that have been made before, even though I still think they haven't been enough. Lekin the kind of visuals that you're getting to see in the film is very, very refreshing. So that was primarily my reaction when I heard the script for the first time. And secondly, when a filmmaker like Bijoy Nambiar reaches out to you, there are very few chances that you're going to not, surrender yourself to it. So these were literally the two primary reasons for me why I gave my nod to this film. मेरे लिए तो विजय सर का नाम काफी था. जैसे ही उन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफर की, मैंने उनका सिनेमा देखा. The way he shoots is very different. He has his own unique way of shooting his films. And for me, to be honest, I feel really grateful and honored. He could have chosen any other actor, and they would have been extremely excited to do the film with him. But I'm just grateful and honest that I got to be a part of this film. And of course, after knowing that Bijoy sir is shooting it and he's working with T-Series, which is the biggest production house in Bollywood right now. So it was an honor to be a part of this film. ये एक्चुअली सवाल थोड़े आप किसी स्टार किड से पूछते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उनके पास इतने ऑप्शंस होते हैं. तो वो आपको अच्छे रीजन बता रहे हैं. मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, अच्छा इंटेलेक्चुअल रीजन आ नहीं रहा मेरे दिमाग में. ऑनेस्ट हम लोग के ऑनेस्ट जैसे एहान, निकिता, मैं, हम लोग बाहर से हैं, इंडस्ट्री. प्रेम परिजा, अनदर एक्टर, हम सब बाहर से. सो हम लोग को कुछ भी मीटी मिलता है तो हम लोग कूद के लेते हैं. तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी आपको ऐसी टेबल है जिस पे स्क्रिप्ट्स की बहुत बड़ी ढेर लगा हुआ है. ऐसा नहीं होता है. ऐसा स्टार्स के साथ होता है. तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं, मतलब इनके लिए नहीं बोल सकता, अपने लिए बोल सकता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है. हाँ बोलना बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई रीजन होता ही नहीं है ना बोलने. ये जरूर था कि बिजॉय सर के साथ एक बार कर चुका था दैश. तो एक बार किसी के साथ आपको मन, जैसे आज का इंटरव्यू अगर हमारा बहुत अच्छा गया, तो अगली बार जब हम ये नाम सुनेंगे या आपका नाम सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग ना वर्ड्स नहीं बताएगा बट फीलिंग बताएगा, कैसा लगा था यहाँ पे. तो ऑटोमेटिकली हाँ निकलेगा मुंह से. तो वो एक साइकोलॉजिकली यस रहता है. जब विजय सर आते हैं तो वो सर ऐसे ही होता है. Yes, there were some workshops that we would put through. Ehan and I were put through a few workshops together. I feel the workshop does definitely help in kind of breaking the ice and having this basic introduction, which I would not appreciate if आपका set पर जाकर. It's always better if that happens beforehand. So gladly that happened with Ehan, and I mean because we had this whole romantic track happening. For me to become friends with Ehan was the most important thing, because the more you are at ease with your co-actor, the more it is easy to kind of perform and just bring out whatever is needed. So we shared an amazing bond of the camera. We've had some really, really fun times. Harsh, unfortunately, we didn't end up spending that much time. But whatever I got to know of Harsh specifically towards the end of the schedule, I think even Harsh will agree with this कि बहुत वो जो हमारा मुश्किल समय था जब हम दंगे एक्चुअली शूट कर रहे थे, बहुत आसानी से निकल गया, हंसी मजाक में निकल गया. और तब मैं हर्ष को जितना भी जान पाई, मतलब मेरी अंदर से बहुत एक गहरी रिस्पेक्ट आती है हर्ष के लिए, जितना I've gotten to know him and the more I'm getting to know him through these interviews. I just wish I would have spent more time with you on set. But going by how Bijoy sir likes to repeat his actors, I think we will very soon. इंशाल्लाह. तथास्तु. आपके मुंह में घी, शक्कर, सरस्वती, हर चीज. एहान के लिए इस आपका बहुत ही अच्छा सवाल है. पहली बार मैं बोलूं, हमारे को इंस्ट्रक्ट किया गया था डोंट ब्रेक द आइस, ब्रेक बोन्स. तो बोला गया था स्पेसिफिकली डायरेक्टर ने मिलो मत. और ऑल्सो हमारी थोड़ी बैक स्टोरी है पास्ट. एहान वो सपोज टू डू सनम तेरी कसम. सो इट वाज, आपको काफी सारा ऑर्गेनिक शायद मिलेगा देखने को इसमें. तो आप प्लीज, मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी आप फिल्म देख लीजिए. So, अगर कुछ सच्चाई लग रही है तो वो काफी बैक स्टोरी से. Is it true, Ehan? Is that the backstory
has impacted a lot of emotions on सारी the खुंदस में है ना इस फिल्म में इसी निकाले फिल्म में इनसे निकाले। नहीं ऐसा कुछ नहीं इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड हम सब ने अपना बेस्ट दिया इस फिल्म में इट नीडेड अ लॉट ऑफ so it's I would say this film is a beautiful product of an endless and hard-working cast and crew who supported this film and we all came along and everyone gave their full maximum potential to bring this film to life. And Harsh being an amazing co-star, and with Nikita, we just released a song just before this interview came, and I saw it for the first time. We were talking about the chemistry. It's looking like it's flowing with ease, and that's what Nikita makes you feel in her presence, because that's the person she is. इसमें कोई there's no rocket science when an actor in front of her is performing. It's as simple as that. It's as basic as that. And I don't think also we went through any major retakes or anything while shooting. It was just flowing. As she said, we broke the ice. And off screen, we became really, really close. Like we started making fun of each other. We started mocking each other. We started gossiping a lot. Like all of those That's things. not something to be proud of That's- and say it on camera. Let's be honest. It's Gossip okay. so much. It's okay. She's a gossip queen. You know, she loves gossip. इसकी जब वैनिटी होती है ना वहाँ लिखा होता है gossip. सब आके निकिता की वैनिटी में That is true. Nikita, oh, what happened? This happened today. हाँ, अच्छा, really tell me guys. So yeah, so you can see that in the songs and of course when you see the film, you see that in the film also. जी मेरे कॉलेज के जो दिन थे आई स्टिल थिंक दे वर सम ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल द मोस्ट enjoyable days of my life because when I was finishing college only is when I started working and उसके बाद मैंने बहुत ही अपने आप को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन में डाल दिया तो जितना I was carefree and I could let loose I probably did that during my college days एक मुझे चीज याद है कि हम लोग एक हॉस्टल में रहते थे नीली हॉस्टल एंड मेरा जो कमरा था वो फर्स्ट फ्लोर का था वहां से हमने एक बहुत बढ़िया तरीके से स्नीक आउट का रास्ता निकाल लिया था बैल्कनी जो थी उस पे रेलिंग पे हम 2 चादर एक साथ कस के बांधते थे तो चादर एंड ऐसे निकल वी यूज्ड टू क्रॉल डाउन एक बार मेरे पास उस समय एक स्कूटी हुआ करती थी किसी की सेकंड हैंड स्कूटी थी जो मेरे पास थी तो हम लोग उस स्कूटी को दूर खड़ा करते थे कि जब भाग के निकल के जाए so nobody comes to know scooty start हुई है so you go run to the scooty and then you get out of the gate this one time what happened is that 3 girls we all snuck out from my hostel we got onto the scooty and we went out and बाहर जाते ही गलती से वो स्कूटी एक बाइक के साथ टकरा गई और ये सब एक मिलिट्री एरिया में हुआ तो वहां पर आपको रेगुलर पुलिस नहीं दिखेगी वहां पर आपको मिलिट्री पुलिस दिखाई देती है और हम लोग भी उनसे ज्यादा डरते थे रेगुलर पुलिस से नहीं डरते थे अगर मिलिट्री पुलिस दिख गई तो मतलब कुछ अगर गड़बड़ आपने किया है हर जगह फैल जाएगी आपके पेरेंट्स तक बात पहुंचेगी सो आई बैंग्ड इनटू एंड आई वाज राइडिंग द स्कूटी आई बैंग्ड इनटू अ बाइकर दैट बाइकर फेल डाउन हिज नोज इज ब्लीडिंग वी ऑल फॉलन डाउन इंस्टेंटली वन मिलिट्री पुलिस जीप केम एंड स्टॉप एंड दे सर आप सबको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और तब मुझे अपना लर्नर्स लाइसेंस नया मिला था सो आई डिडंट इवन हैव अ प्रॉपर लाइसेंस So I was really scared and I said नहीं मेरे यहाँ से खून बह रहा है and I said नहीं मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ इसलिए आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है पहले Finally we went to the hospital and वहाँ पर जिसके साथ मैंने बैंक किया था अपना स्कूटी उनकी नाक टूट गई थी प्रॉपर फ्रैक्चर आया था हमें काफी चोटें आई थी and instantly this entire news spread everywhere everybody got to know my parents got to know everybody you can think of our hostel warden got to know उसके बाद ये करीब एकदम लास्ट के दिनों की बात है मेरे हॉस्टल लाइफ की सबको पता चल गया था कि हमारा रास्ता है स्नीक आउट करने का उसके एक हफ्ते के अंदर there were these giant grills that were put in everybody's balconies तो बहुत ज्यादा कोसा गया था हमें कि हमारा जो एक रास्ता था वो बंद करवा दिया हम लोगों ने that's one small incident I can think of वो विजय सर को पता चला इंजीनियरिंग को कास्ट किया मेरा क्या आपकी कोई मेमोरीज नहीं ऐसा बस इतना फर्क आया लाइफ में उस टाइम पे सिर्फ टेंशन ये होता था कि रिपोर्ट कार्ड ग्रेड्स जो थी वो घर वालों को दिखानी और अब लाइफ में कुछ अलग टेंशन है यही डिफरेंस है अब लाइफ में ये टेंशन है दंगे लोग देखे थिएटर्स में देखे चले हम सब का काम चले डायरेक्टर सर का काम चले ये सब सोचते हैं मैंने स्कूल किया है सिर्फ और अभी मैं थोड़ी
अभी मैंने लास्ट ईयर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया साइकोलॉजी में, तो अभी थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया कर रहा हूँ। तो अपनी जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होती है वो वाली एजुकेशन तो नहीं मिली, बट क्योंकि मैं घर से भागा था तो लोगों को देख के जो मुझे सीखने मिला वही मेरी एजुकेशन है, वही मेरी डिग्री है, और मैंने PhD करी है लोगों को पढ़ने में। 100%। इनकी जो आंखें है वो बहुत बहुत आसानी से लोगों को परख लेती है। वो भगवान का एंड अगर इफ हर्ष कम्स एंड टेल्स मी कि ये ऐसा है और ऐसा हुआ है, आई विल ब्लाइंडली बिलीव इट, एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। आई विल ब्लाइंडली बिलीव इट। I think when you're on set, I have always said this for a very long time, that your biggest learning does not come from going to any fancy school. I used to get very intimidated when earlier people used to go like, I've been to this film school and I've been to that film school. That in any artist's life, the best teacher is experience. Harsh, would you like to add something to this? Yeah, I think अभी मैं कॉलेज में फ्लायर बांटने गया था, तो एक लड़की थी, तो कुछ इंटरेक्शन हो रहा था, कुछ सवाल जवाब, तो उसने मुझसे बेचारी ने बहुत ऐसी छोटी सी पटीट सी थी, उठी वो बोली, सर इंट्रोवर्ट लोग बन सकते हैं एक्टर। मुझे आई वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू क्राई, क्योंकि मुझे आई हैव बीन एन इंट्रोवर्ट एंड यू कैन नेवर कंप्लीटली बिकम एन एक्सट्रोवर्ट, यू कैन ट्राई, यू कीप ट्राइंग, एंड सो आई कीप ट्राइंग ऑल द टाइम, बट आई फील फॉर ऑल द इंट्रोवर्ट्स आउट देयर, लर्निंग का जो आपका सवाल है, you only learn by watching, especially introverts, क्योंकि और मेरे लिए बचपन से ये हुआ है कि मैंने शायद बात ज्यादा नहीं करी है। सेट पे भी हम लोग को मेरा कोई इंटरेक्शन किसी भी एक्टर के साथ नहीं होता है, बट मेरी बचपन से आदत है कि मैं दूर से देख के, एंड माय माइंड डज दैट फॉर मी, क्योंकि मुझे पता है कि और कहीं से किताबें तो मिलेंगी, तो मैं वही कोशिश करता रहता हूँ। और ये सच बात है जो ये दोनों कह रहे हैं, इंटरव्यूज में मैंने इतना जाना है कि मैं घर जाके भी इनकी बातें कर रहा हूँ, बताता हूँ कि उसने ऐसे बोला, and he's so like this, and I'm getting to discover these two people, and आप देखते हो एक परसेप्शन बनाते हो, लेकिन फिर आप जब उनको जानते हो तो कितनी फनी चीज़ें हम देखते हैं और एक वन लाइन में बॉक्स कर देते हैं, बट उसके नीचे कितने लेयर्स होते हैं इंसान के। सो डेफिनेटली साउथ से जब से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे सारे को एक्टर्स को नहीं पता है, लेकिन मैं सबको देख के my mind is always trying to absorb as much as I can. I think a very simple reason is we made this film for your entertainment. We made this film so that you can connect. If at all you are in that age, you can relive your youth. We've brought to you everything that we could on a platter with every possible emotion. So please go watch Dange and make the most of it. Yeah. I mean, as far as I know, my knowledge of cinema, I have loved films like Rang De Basanti, I have loved films like Rehna Hai Tere Dil Mein, shows like Elite and shows like Euphoria and all the college-based shows, because I always found the relatable factor in that. So for the sake of, if you find relatability in the trailer, and if the trailer made you curious like what the story is about, just go to the theatres and experience it. मेरा जवाब शायद कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट मैं ऑनेस्टली बोलने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सनम तेरी कसम थिएटर में नहीं देखी, इसलिए पार्ट 2 नहीं बनी। ठीक है, मुझे कमेंट्स में आप लिखते रहते हो पार्ट 2 लाओ। आज किसी ने लिखा है सर पार्ट 2 हो जाए, मैंने नीचे लिखा है सर होटल में बैठ के पकौड़े ऑर्डर कर रहे हो क्या, पार्ट 2। तो मेरे से रुका नहीं गया, मैं लिख दिया, मैं सोचा डिलीट करूंगा, नहीं मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा तरीका है, पार्ट 2 हो जाए, कहाँ से लेके आओ। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप लोग टिकट नहीं खरीदते। इस फिल्म का टिकट अगर नहीं लोगे, मुझसे किसी फिल्म का पार्ट 2 पार्ट 3 कमेंट्स में मत लिखो प्लीज। मेरे को पहाड़ों में घूम रहा हूँ, कहीं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ पार्ट 2 हो जाए। तो गाइस प्लीज 1 मार्च को दंगे थिएटर में आ रही है, मैं और कैसे बोलूं, जाके नहीं देखोगे तो मुझसे मत बोलो कि इंडस्ट्री आपको काम नहीं देती। आप लोग ही माई बाप हो, आप लोग के हाथ में पावर है, डिसीजन मेकर्स आप। टिकट खरीदो, डाउनलोड करके कुछ नहीं होता, वॉच इन द थिएटर।